Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. This is नईम इकबाल from Happiness Mentor. एक लंबे ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं. जैसा कि आपको पता है कि हम मेंटल हेल्थ, वेलनेस, हैप्पीनेस एक्चुअली दैट इज आवर मेन टॉपिक जिस पे हम बात करते हैं. और आज हमारे पास साथ गेस्ट हैं, वेरी एक्सपीरियंस्ड गेस्ट. हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर सना यासिर. अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम। जी डॉक्टर सना यासिर, मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराता चलूँ आप लोगों को. डॉक्टर सना यासिर एक अभी ब्लूम की सीईओ हैं, फाउंडर हैं. शी इज अ मेडिकल डॉक्टर. इंटरेस्टिंगली शी हैज बीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट आल्सो. उनकी आवाज से भी लगता है कि आई एम श्योर शी मस्ट बी अ वेरी गुड वॉइस ओवर आर्टिस्ट. One of my favorite topic, NLP. She is NLP master practitioner. She has been head of trainings. She talks about mindset, success, well-being, motivation, mental health. She provides services on executive coaching, life coaching, leadership development, diversity, inclusion. So, thank you, Dr. Sabha. Thank you very much for joining us today. It is wonderful to have you with us. Thank you So, for having me. Thank you it's for like, having me here, Naeem Saab. thank you very much. So today's topic is how negative thoughts steals our joy and happiness. So Yes. over to Dr. Sena. Listen what she has to say about this, and then you can ask your questions in the comments. We'll ask her the questions, and then let's see how this session goes. So, Dr. Sena. So, starting with negative thoughts. Which thoughts are negative? We think up many thoughts during the day. The minute we open our eyes, we have so many thoughts going on. जो कुछ दिमाग में आ रहा होता है, related to what we are going to do in the day, if we have any tasks, if we are if we are young, we have school to attend or some work to do. If we are in job, we have job related tasks to finish. Most of the time we also ignore that we have family members, we have certain roles to play. So keeping all that in mind, we get Mindset, overwhelmed. success. हाँ जी, नीम साहब मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है? जी बिल्कुल Are क्लियर you है, able to hear बिल्कुल me? क्लियर. All Yeah, right. yeah, I do. Okay, so when we are overwhelmed with these thoughts, what does overwhelm even mean? It means that there are too many emotionally charged topics going on in our head. What does it do? It affects us, it affects our mood, it affects the way we behave with people, it affects our attitude, and ultimately people label us कि ये तो गुस्से वाले हैं, या ये तो बस उदास ही रहते हैं, या ये तो मतलब we get labels. People question our mindset. Mindset का मतलब क्या है? The setting for your mind. How have you set it? Very simply put. So what does one do? It begins with ants. Ants क्या होती हैं? ANTS. Automatic negative thoughts. Okay. So ants, they keep coming and crawling in our head. We need to consciously control these ants. How do we do that? क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, they will come. So you have to first become self-aware. Identify those automatic negative thoughts. How do we identify them? वो सवाल होगा ना, वो बेवकूफ़ाना सा सवाल होगा. आमतौर से the quality of your life depends on the quality of questions you ask yourself. कभी why के लूप में फंसे. Why is this happening to me? Why did Alamia do this to me? Why am I stuck? Why do I always
do something wrong? Why do I take bad decisions? Why is never a good question to ask. नईम साहब, आप रिलेट कर सकते हैं इन चीजों से कि ऐसे Yes, दिमाग yes, में सवाल आते हैं, yes, I right? can. It is really And wonderful. बिल्कुल and ऐसे ही है. there is no good response to a why. Instead, ask yourself, is this thought helpful? So for example, you've woken up, you're now it's time for breakfast, right? And you ask yourself, अंडा पराठा खाऊं या generally छोटे छोटे tiny decisions होते हैं ना, that we take more than 36,000 decisions in a day. Imagine. हम अवेयर भी नहीं होते, राइट? सो ये अंडा पराठा वाला मिसाल क्यों था? बिकॉज यू कैन चूज टू ईट समथिंग हेल्दी ऑल्सो. आई डोंट काउंट अंडा पराठा इज हेल्दी, बट Mhm. it's a choice and we take it. We don't even care what it will do to us. But if we start asking ourselves, is this thought helpful? किसी ने कुछ बोल दिया आपके बारे में, अब आप घंटों सोचते रहे, यार इसने मेरे बारे में ऐसे क्यों बोला था. कभी ऐसा भी तो होता है ना नईम साहब कि यू हियर समबडी से, ओ देयर वाज अ गॉसिप गोइंग ऑन, दे वर टॉकिंग अबाउट यू, एंड यू आर लाइक, व्हाई वर दे टॉकिंग अबाउट मी? Why? Again, why is never a good question to ask. Ask yourself, is this a helpful thought? Can they be learning something from me? Is there another way to look at this? एक बेहतरीन सवाल है ये, आपकी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को कम करता है. इज देयर अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस? एक और सवाल जो आप पूछ सकते हैं वो ये है कि इज दिस इवन, how will this help me? What will this do for me? What is the benefit? Why am I making this thought? Right? Why am I making this thought? What will I do with it? Right? So कोई एविडेंस है कि ये सही है? क्या ये सच है? सो फॉर एग्जाम्पल नेम साहब कोई बोले, आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, कैपेबिलिटी को चैलेंज किया. दिस काइंड ऑफ थॉट इंड्यूसेस सेल्फ डाउट, राइट? सो True. क्या इसमें कोई हकीकत है? हम ये भी तो पूछ सकते हैं ना अपने आप से कि इज दिस इवन ट्रू? मेरे पास क्या एविडेंस है कि ये सही है? हाउ कैन दैट पर्सन नो कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं? उल्टा हम उदास हो सकते हैं, हमें गुस्सा आ सकता है, इन्होंने हमारे बारे में ऐसे क्यों बोला. हम गलत टेंजेंट पे गलत सवाल करने लग सकते हैं. ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को बड़ा कर दें तो वो एंजाइटी और ओवर थिंकिंग और पैनिक अटैक की सूरत भी इख्तियार कर सकती हैं. सो क्वेश्चन एंड चैलेंज दोज ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स. हाउ वुड, फॉर एग्जाम्पल, यही थॉट, अगर कोई एक नेगेटिव थॉट, नहीं भाई अपनी कोई नेगेटिव थॉट बताएं, हम अभी ही एक्सरसाइज करके देखते हैं तो सारी ऑडियंस को भी इससे थोड़ा फायदा होगा. कोई एक नेगेटिव थॉट बताएं. Like there's a tough challenge और मैं समझता हूँ कि यार ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा. सो ये अगेन ये थॉट है कैपेबिलिटी रिलेटेड, राइट? कैपेबिलिटी रिलेटेड थॉट हो गई ना, Yes. है ना? तो Yes. जिसने ये थॉट किसी वजह से आई है, या ये थॉट क्या आपने किसी को कहते सुना? सो ऑडिटरी इनपुट, क्या आपने किसी से कहते सुना कि उन्होंने सोचा कि मैं ये नहीं कर सकूंगा तो मैंने यकीन कर लिया उनकी बात का? व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट पर्सन जिससे सुना? या कोई रिपोर्ट होती है बाजू का, तो रिजल्ट आता है और आपने उस पर, वो रिजल्ट अच्छा नहीं है तो आप ये सोच सकते हैं कि ओहो मुझसे नहीं होगा, है ना? सोच आ सकती है. Yes. सो Yes. आप जब अपनी कैपेबिलिटी के बारे में ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वो या तो आपने कहीं से सुना है, या आपने देखा है, या आपने महसूस किया, किसी ने आपको एहसास दिलाया है, राइट? ये हमारे इनपुट के तरीके जिससे हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, राइट? सो हमें इसी को चैलेंज करना है. और हम इसको चैलेंज कैसे करेंगे? हम पूछेंगे क्रेडिबिलिटी. Credibility. Okay. कितनी सच्चाई है इसमें? क्या एविडेंस है जो इसको सपोर्ट करती है?
पूछ सकते हैं ना, क्या एविडेंस है जो इसको सपोर्ट करती है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम हियरसे पे रिएक्ट करते हैं, किसी और की बात से, किसी और के जजमेंट से, किसी और के ओपिनियन से। अब ओपिनियन और फैक्ट में फर्क होता है ना? Yes, yes, it is. It's a big ओपिनियन difference और फैक्ट actually. में फर्क है, Yes. ठीक है? सो हमको क्या करना है, जब हम इसको चैलेंज कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि अगर अगर यही अगर इसी बात से इसी बात से कोई गुजर रहा हो, यही चैलेंज कोई फेस कर रहा हो, हम उसको क्या नसीहत करेंगे, हम उसे क्या एडवाइस करेंगे, और हम क्या बताएंगे उन्हें कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है, राइट? इस तरह हम उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अपने आप पे काम करना सबसे पहले जरूरी है, अपने आप को कैच करना जरूरी है, एंड्स को कैच करना जरूरी है कि कब हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स बना रहे हैं। अपनी थॉट को वैलिडेट जरूर करें, आपने इनवैलिडेट नहीं करना, आपने ये नहीं कहना कि ओ ये गलत मैंने सोचा। पहली थॉट वैलिड, किसी ने आपको एहसास दिलाया वो वैलिड है, किसी ने आपको आपकी रिपोर्ट गलत तो नहीं होगी, कुछ किया है जिसका रिजल्ट आया है, राइट? बट उससे डिस्करेज नहीं होना, ये फाइनल या हतमी फैसला नहीं है, चॉइस आपकी है, हाउ यू वांट टू गो अहेड विद इट, हाउ यू टेक इट। इफ यू टेक इट नेगेटिवली, आप अपने आप को फेलियर समझने लगेंगे, और एनएलपी में हम ये सीखते हैं कि फेलियर तो कुछ होता ही नहीं, राइट? फीडबैक होती है, where there is no failure there is feedback, और वो फीडबैक क्या है, हमें अपने आप को देखना है कि हम कहाँ पर कुछ मिस कर गए, what was missing, so that we can add it and try again. If there is something missing, we can try again. So Yes. कभी फेलियर हो सकता है? No. फेलियर तो आता ही नहीं फिर कभी, फीडबैक Yes. आती है। फीडबैक को सही से एब्जॉर्ब करना, लेट इट सिंक इन, डोंट आस्क व्हाई क्वेश्चंस, आस्क व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट। So replacing, yes, so replacing why with what, that is the core thing. yes, what Okay. can I do differently, what is good about this, what else can this mean, what is another way to look at it, what will help me right now। क्यों हम चाहते हैं नेगेटिव थिंकिंग खत्म करना? क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग का आप पे डायरेक्ट असर होता है, Yes. आपकी एनर्जी लो होती है, आपका मूड खराब होता है, आप प्रोडक्टिव नहीं रहते। इमेजिन करें नहीं भाई कि आपकी वर्कफोर्स है, आप एक कंपनी में काम करते हैं और वहां वर्कफोर्स है और वो सारे ना यूं बैठे या फ्राउन करे, हैप्पी नहीं है वो, ठीक है? सो ठीक है। उन तमाम लोगों को जो कि इस तरह से बैठे हैं, क्या वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं? क्या उनमें वो एनर्जी होगी? क्या उनमें वो मोटिवेशन होगी? क्या उनमें वो सलाहियत रह जाएगी जो असल में है बट वो उसको टैप नहीं कर पा रहे? नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं क्या होगी। जरूरी है, क्या जरूरी है? जरूरी है कि पॉइंट फर्स्ट स्टेप पे हम उनकी नेगेटिव थिंकिंग को डील करें। और जब मैं हम कह रही हूँ तो इसका मतलब है सबसे पहले मुझे अपने पे काम करना है, अपनी थिंकिंग को मस्बत करना है, पॉजिटिव करना है। Yes. क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है मेरे ऊपर, और मेरा इम्पैक्ट है उन तमाम रोल्स पे जो मैं रोल्स अदा करती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं मदर हूँ, ठीक है, मैं वाइफ हूँ, मैं डॉटर हूँ, मैं डॉटर इन लॉ हूँ, इसके अलावा मैं जिन लोगों से इंटरैक्ट करती हूँ उनकी मैं कोच हूँ, न्यूरल कोडिंग स्पेशलिस्ट हूँ। तो उस जिन लोगों को मैं न्यूरल कोडिंग करवा रही हूँ उन लोगों के लिए भी मेरा अच्छी स्टेट में, रिसोर्सफुल स्टेट में होना जरूरी है, राइट? कि मैं Yes. आपको अपना बेस्ट दे रही हूँ, और जब मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ तो मैं तब भी लर्न कर रही हूँ कि मैं क्या कुछ मिस हुआ, मैं उसको मजीद ऐड कर दूँ, क्योंकि सर्विस है ना, Yes. राइट? हम लोगों को सर्व करें। जैसे आपने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, आप लोगों को मेंटोर करें फॉर हैप्पीनेस। सो इट इज
इट इज मैंडेटरी कि उनको ये पता हो कि आपकी हैप्पीनेस आपके अंदर है। Yes. आपने अपनी हैप्पीनेस को अंदर से बाहर लाना है। हैप्पीनेस लाने के लिए उस स्टेट में आना जरूरी है जहां लोगों को नजर आए, लोगों को पता चले कि यार यस, मुझे ऐसे बनना है, मुझे वो करना है जो ये कर रही है, ये कैसे कर पा रही है, इसमें एनर्जी इतनी कहाँ से आई है, व्हाई इज शी सो एक्साइटेड, पैशन कहाँ से आया इतना, राइट? सो Yeah. when you walk the talk, जो आप बताते हैं, सिखाते हैं, जब आप वो करते नजर आते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। आपका जो स्टेट है, यानी स्टेट का मतलब है इमोशनल स्टेट, यानी हैप्पी होना, उसमें जो भी आप अपने जितने वैल्यूज दिखा सकते हैं कि यार मैं ऑनेस्ट हूँ, मेरे अंदर इंटेग्रिटी है, मैं टेनेशियस हूँ, मैं डिटर्मिन्ड हूँ, मैं यू नो रिजिलियंट हूँ, परसवेयर कर सकता हूँ, मुझ में यानी मेरी जो सलाहियतें हैं वो नजर आने लगती हैं। कैसे? क्यों कोई बंदा जब आपको पता है ना, एक ऑरा होता है सबका, एक एनर्जी होती है Yes. जो हम शेयर करते हैं, राइट? True. Yeah. हम अपने हर इंटरेक्शन में एक एनर्जी शेयर करते हैं। कभी ऐसे बंदे को देखा यूं करके बैठा और के हाँ ठीक है मैं खुश हूँ? No. It can't be like क्योंकि this. जो खुश होता है, हाँ, क्योंकि जो हैप्पी होगा वो हैप्पीनेस फैला भी रहा होगा, राइट? True. लॉ ऑफ True. अट्रैक्शन भी True. तो है, ठीक है? हम एनर्जी शेयर करते हैं। सो Yeah. क्या है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है? अपना स्टार्टिंग पॉइंट पता होना जरूरी है, सेल्फ अवेयर होना जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में मालूम होना जरूरी है। आज मैं खुश हूं, कल मैं उदास हो सकता हूं, लेकिन उदास होने के बाद कितना जल्दी मैं वापस खुश होता हूं ये मैटर करता है। मेरे ब्रेन का एक केमिकल बैलेंस है, राइट? मैं डॉक्टर हूं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मेडिकल लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहती, मैं बहुत सिंपल करके आपको बताऊंगी कि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे एक्शंस से, द वे वी Yes. यूज आवर बॉडी, Yes. ठीक है? आप अगर ऑफिस जॉब करते हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए जो डेस्क जॉब करते हैं, जो कहते हैं कि जी हमारे पास तो वर्कआउट का टाइम नहीं है, हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, बस चेयर पे बैठे रहते हैं और पेट निकलता रहता है। ऐसे होते हैं लोग जिनको लगता है कि उनका बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक Yeah. है? True. सो व्हाट कैन दे डू? क्या ये एक्सक्यूज नहीं है कि नहीं हमें तो टाइम नहीं मिलता? टाइम ना मिलना तो कोई बात ही नहीं है, आपका फोकस है अपनी हेल्थ पे, आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं क्या? Self awareness is the key, and you have to take that choice, you have to make that choice, you have to make it a priority. मेरी एक दोस्त है, शी इज ऑल्सो नोन एज हैप्पीनेस पंडित, ठीक है? वो हैशटैग Okay. हैप्पीनेस पंडित यूज करती हैं, आयशा जबीन नाम Okay. है उनका, वो भी मास्टर कोच है, दुबई बेस्ड है वो। सो व्हाई इज शी द हैप्पीनेस पंडित? बिकॉज वो अपनी एनर्जी के थ्रू, अपनी कोचिंग के थ्रू, जिस तरह आप हैप्पीनेस मेंटर हैं वो इसी तरह कोचिंग करती है। व्हाई? बिकॉज हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम इनसाइड। Oh, yes. और I truly believe in आप that. बिल्कुल, और आपकी हैप्पीनेस को आपको टैप करना आना चाहिए। What makes you happy? How many times you do it? Right? और किसी और के अल्फाज की वजह से, किसी और की हरकत की वजह से, किसी सर्कमस्टांसेस जो होते हैं ना, आपके हालात की वजह से, क्या आप अपनी एनर्जी डाउन जाने देंगे? क्या आपकी चॉइस नहीं है कि आप फिर भी खुश रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें? आपको पता है जहां ग्रैटिट्यूड होता है, जहां थैंकफुलनेस होती है, वहां मिजरी और ये मुश्किलात कम आती हैं। आप True. कम मुश्किलों को अट्रैक्ट करते हैं, आप हैप्पीनेस को ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आप आके आपकी लाइफ की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, राइट? True. सो True. स्लोली ग्रेजुअली ये तमाम चीजें माइंडसेट की तरफ जाती हैं। आपकी साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी को बहुत, मतलब अगर मुझे दरिया को कूजे में बंद करना हो तो मैं साइकोलॉजी को कहूंगी कि साइकोलॉजी इज नथिंग बट व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, व्हाट यू थिंक ऑफ अदर्स, एंड व्हाट यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू।
जो Wow. आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे और सोचेंगे कि अगला बुरा है, बदतमीज है, चोर है, उचक्का है, जो नेगेटिव वर्ड्स आप उनके लिए दिमाग में ला सकते हैं, Mhm. तो आप मतलब आप ये बुरी चीजें आइडेंटिफाई करें, तो आप जब बुराई ढूंढ रहे हैं तो आपको बुराई दिखेगी। जैसे मैं अभी पिछले लास्ट संडे को मैं बच्चों को लेके गई सी व्यू यहाँ कराची में, ठीक है। Mhm. और Mhm. मैंने स्टोरी में लगाया, मैंने अपना इंस्टाग्राम स्टोरी, वो जिस तरह ये होता है ना, आप पैन करते हैं और आपको Yes. दूर तक लोग नजर आ रहे। Mhm. आई कुड ओनली सी लव बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर लव। Yes. You see what माई you are looking for. माई Absolutely. यस, माई फोकस वॉज लव एवरीवेयर। Yeah. बच्चे लाए हुए थे लोग, फैमिलीज लाए हुए थे लोग, एक फैमिली बैठ के पिकनिक कर रही थी, यू नो, मतलब दादा दादी समेत सब आए हुए थे। इट वाज ब्यूटीफुल। लेकिन जिसको कचरा देखना है उसको सीवी पे कचरा भी दिख जाएगा, यू नो। सो फोकस, True. Very true. अपना फोकस, फोकस मैनेज करना है, टाइम मैनेज खुद ही हो जाएगा। फोकस मैनेजमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज फोकस गिव्स यू मीनिंग. When you get a negative thought, when you're fighting ants, what do? You look for where your focus is. Are you focusing on something negative? Shift that focus. Ants को challenge करें. Is there evidence that it's true? Is it a fact? Is it an opinion? What is it? This will help you immensely. नईम भाई कोई सवाल कुछ पूछना चाहेंगे? Yes, we have some questions from the audience. Naveed Ramzan साहब पूछते हैं, how can we ignore others gossips, like in an office environment जहाँ पे बहुत सारी gossips हो रही होती हैं, तो is there any way कि आप Of उसको course. ignore कर सकें? ऑफ कोर्स। सो पहली चीज, उस गॉसिप में आपका क्या इंटरेस्ट है? वाई यू इंटरेस्टेड? सो क्योंकि हम वाई नहीं पूछते, हम व्हाट पूछते हैं, तो आप पूछेंगे व्हाट इज अनदर वे टू लुक एट इट? इज द गॉसिप अ कंपैरिजन? किसी की बुराई हो रही है, आपके बारे में बुराई हो रही है, इज इट गोइंग टू हेल्प यू? इज इट दैट समबडी लुक्स अप टू यू, इसलिए बात कर रहे हैं? किसी, देखिए, जो गॉसिप है आमतौर से नेगेटिव कॉनोटेशन में होती है ना, किसी की बुराई Yes. हो रही है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज स्टेप अप एंड से ये सच नहीं है, ये ओपिनियन है। किसी का ओपिनियन होता है ना, हो एविडेंस के सकता है। अगेंस्ट होता है, ठीक है। True. अच्छा, अगर तो वो एविडेंस हो और वो फैक्ट हो तो वो गॉसिप नहीं होगा, इट विल बी नोन, Yes. राइट। True. जब हम True. ओपिनियन पे ओपिनियन ऐड करते हैं तो वो फैक्ट नहीं होता, और आप उसमें उसको इस तरह से काउंटर करते हैं कि आप पूछते हैं हाउ इज दिस बेनिफिटिंग मी, व्हाट इज अनदर वे टू लुक एट इट, Mhm. what can I do differently? You don't have to be a part of the gossip. Instead of ignoring it, address it, you know, in your head. जरूरी नहीं कि आप जाके जो गॉसिप कर रहा है उसको जाके झाड़ लें ठीक है, Mhm. उससे जाके Mhm. मिंगल करने की जरूरत नहीं, बट आप अपनी हेल्दी बाउंड्री बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये किसी और के बारे में गॉसिप कर रहा है तो ये मेरे बारे में भी कर सकता है। आई हैव टू बी Yes. केयरफुल। सो यू कैन आइडेंटिफाई हु इज द राइट पर्सन टू हैंग विद। सी, तो ये जो सवाल था ये बहुत अच्छा सवाल था, बिकॉज इससे न सिर्फ आप अपनी एंड्स को कंट्रोल करेंगे, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे हु इज द राइट पर्सन टू हैंग विद, आपका क्राउड कौन सा है। Yes. आई होप दैट वाज हेल्पफुल। Yes, yes. Okay, there's another question. Lubna Ali पूछती हैं, how can we change negative thinking of others? ये पूछती हैं for especially for working ladies. हाँ Let me repeat the question. How can we हाँ, change negative thinking of others for working ladies? ओके, देर आर मल्टीपल वेज। अगर Mhm. तो ओपिनियन बेस्ड बात हो रही है तो उसमें आप हमेशा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लें, हाँ में हाँ मिलाने के बजाय इस तरह से बोलें, जिस तरह सैंडविच अप्रोच होती है कि आई अग्री विद सम ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, मैं कुछ हद तक Mhm. आपसे अग्री करती हूँ, बट Mhm.
ये भी समझें कि ऐसा भी होता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप अपना पिच इन करें, और उसके बाद ये कहें कि क्यों ना हम इसको एक और नजरिए से देखें। सो पर्सपेक्टिव चेंज, और ये बताना जरूरी है कि दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में इसी बात को डिफरेंट तरीके से देखा जा सकता है और जांचा जा सकता है। सो हम जहाँ रहते हैं, हमारी कम्युनिटी में, हमारे खित्ते में जो आम बातें हैं वो इस वजह से आम है क्योंकि हमने उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन इसी वक्त में, इसी टाइम फ्रेम में, इसी एरा में, इसी सिचुएशन को कोई और किसी और तरह भी देख सकता है। प्लस क्या इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? अगर किसी को फायदा पहुंच रहा है तो इसमें हर्ज क्या है, और अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं? हम अपनी तरफ से क्या हेल्प दे सकते हैं, क्या एडवाइस दे सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो। हम उस नेगेटिविटी का, उस नेगेटिव थिंकिंग का अपने ऊपर असर लेने के बजाय अगले को भी कह सकते हैं कि देखो, दिस इज नॉट बेनिफिटिंग अस। आई होप दैट वाज हेल्पफुल। Yes. There's another question. हाँ Uh, जी। Sometimes there are a lot of people around us in our office. हम एक ऐसे ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव और र्यूमर्स फैलाने वाले लोग हैं. हाँ, How to deal with such people while meeting your own deadlines and your own productivity and your own energy level. So how we can do that? पहली चीज, हेल्दी बाउंड्री। यू डोंट हैव टू इंटरेक्ट विद देम, बट ऐसा हो सकता है सबॉर्डिनेट हो या सुपीरियर हो आपके पोस्ट वाइज, तो आप उनसे इंटरेक्ट उतना ही करते हैं, काम टू काम। ठीक। दूसरी चीज, वाई आर यू ओवर थिंकिंग अबाउट देम? अगर आपको पता है कि रूमर है तो रूमर है, देयर इज नो हकीकत इन इट, देयर इज नो ट्रूथ इन इट। If you are allowing it to affect you, it will affect you. Stop allowing others to have an effect on you. अपनी शील्ड इतनी मजबूत कर लें, अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि आप यू वॉक द टॉक। वॉकिंग द टॉक का क्या मतलब होता है कि जो आप कह रहे हैं वो आप करके दिखा रहे हैं। आप अपनी डेडलाइंस मीट करें और आप दिखाएं। इट्स अ प्रूफ। मीटिंग अ डेडलाइन इज अ प्रूफ, इट्स अ फैक्ट, इज नॉट एन ओपिनियन। यार ये बंदी अपना काम टाइम पे करती है, इसमें बुराई तो है ही नहीं, ये तो अच्छी बात है। और ये इस बात को अगर कोई बोलता है ना कि लाइक इसको नेगेटिवली अगर किसी का कोई पोर्ट्रेट करे, तो ये जो नेगेटिव पोर्ट्रेट कर रहा है, इट्स ऑन देम, इट हैज नथिंग टू डू विद यू, बिकॉज यू ऑलरेडी प्रूवन दैट यू मेक डेडलाइंस मीट। ट्रू। मैं इसको ये कहता होता हूँ, एंड्स नहीं आने देनी। या मैं इसको ये कहता होता हूँ कि आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल। You don't want to let somebody else change your moods, कि मैं कोई भी बात करूँ और आपका मूड जो है वो यू एंग्री हो जाए, सैड हो जाए, हैप्पी हो जाए, तो वो आपका रिमोट आपके अपने हाथ में होना चाहिए। उसको फीलिंग को एक्नॉलेज जरूर करें कि यार इन्होंने मेरे बारे में ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, बट अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं ऐसे नहीं बोलता। मेरा तरीका फर्क होता क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ और मैं वो नहीं हूँ जो इनके अल्फाज हैं। Okay, there's another question, और ये थोड़ा डिटेल्ड क्वेश्चन है और आई वुड लाइक कि आप इसको भी जरूर आंसर करें। आयशा खान कहती है, हाय नईम सर एंड सना, आई एम गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन लाइफ. I get constant negative thoughts about everything and I feel like I'm not good enough, whether it's my job, my relationships. I just want to know how to work on myself and control my negativity. I'm constantly trying, but I get back on the same track. I'm affected physically and mentally. I feel drained all the time. This is the whole sort of paragraph she wrote. Yes, I'm sorry, my dear, that you have to go through this, but there is always a way out. So what you need is, if you can, get a coach. Take coaching. A coach is supposed to get rid of negative thinking. They get rid of your negative emotions. They also teach you how not to doubt yourself. So आपकी जो capabilities हैं, उसके बारे में जो आपकी limiting beliefs हैं, उनको खत्म करते हैं वो. They also help you become a better decision maker. So
I would say if you can hire a coach, they're really helpful. Follow the right pages, follow the right, if you're on social media, follow the right hashtags, motivating ones, the positive, like good and positive hashtags की जो उनको follow करें, ऐसे mentors ढूंढें who have already done what you want to do. आपकी जो relationships हैं वो बेहतर होंगी when you connect deeply, और आप deeper connections तब बनाएंगी जब आपकी values sorted होंगी. Now a coach is trained to bring out the values, the right values in you and align you. So that is another way. Hiring a coach is always a choice and need. ये नीड आप खुद असेस करते हैं. क्या आप पुराने पैटर्न्स में बार बार जिस तरह एक साइकिल होता है उसमें घुस गई हैं? उस साइकिल को ब्रेक करना जरूरी है. इंटरप्ट द पैटर्न. जी नहीं भाई, कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, perfectly said. The last question from my side जो मैं अपने हर गेस्ट से जरूर पूछता हूँ, since this forum is for happiness, तो the last question जो मैं लाजमी पूछता हूँ वो ये है कि what do you think, as per your experience, your mindset, your thought process, how we can lead a happy life? अगर मैं 3 चीजें आपसे पूछूं, what top 3 things we should do to have a happy life? नहीं भाई, मेरे नजदीक गिविंग इज द टॉप मोस्ट थिंग. जो सर्विस होती है, मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि आपने मुझसे पूछा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि आप जब बेलॉस होकर कुछ देते हैं ना, तो उसका रिटर्न अल्लाह देता है आपको. बेशक. और वो आप लिमिट नहीं कर सकते, फिर वो छप्पड़ फाड़ के देता है, सो गिविंग, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी. ठीक है, जिस हाल में भी हैं उस हाल में कुछ तो बेहतरी होगी ना. शुक्रगुजारी अल्लाह मियां मांगता है. मैं थोड़ा सा ज्यादा रिलीजियस एस्पेक्ट से सोचती हूँ जब मैं सर्विस और कोचिंग की बात करती हूँ. सो गिविंग, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस. लाइक आप जो कर रहे हैं, ग्रेस, नॉट जस्ट ग्रेस, आप में इतना ठहराव हो. यानी मैं वैसे तो बहुत लोग सोच सकते हैं कि मैं लाउबाली हूँ और एक्टिव बहुत ज्यादा. ठीक है, पैशनेट, हैपनिंग, ये सारी चीजें मेरी शख्सियत का हिस्सा हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, उम्र के उस हिस्से में आ रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं गिविंग और ग्रैटिट्यूड के साथ साथ मुझ में वो ग्रेस भी हो कि मैं जो काम करती हूँ मैं अपने आप पे फख्र करूँ. जैसे मैं छोटे छोटे स्टेप से मैं अपने आप को प्रेज करती हूँ, कि वेरी गुड, वेल डन, अपने आप को प्रेज करती हूँ मैं. इसमें ये कतन ये बात नहीं अपने मुंह में या मिट्ठू कोई बन जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है. लेकिन मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरी फुलफिलमेंट है इसमें कि यार देखो, मैंने इस नियत से ये किया था, मेरी नियत पॉजिटिव थी और उसका कितना अच्छा रिटर्न मिला मुझे. सो आई वुड से द 3 G's फॉर मी. ये अभी आपके पूछने पे मुझे ख्याल आ गया कि गिविंग, gratitude and grace. These are the 3 G's that I would say make me happy. Very nice. अच्छा, meanwhile हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया गया. मैं चाह रहा हूँ कि अब I'm taking your time, but probably it's the last one. काशिफ साहब पूछते हैं कि how to compete with people who are not worried about their performance in office just because they have references at their back. Very interesting one. I would say reframe the question, because you're not competing with others around you. They have their designated jobs, they have their JDs with them. उनका अपना काम है. ठीक है, तो you're not competing with them, but what you might end up doing is comparison. और कंपैरिजन के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि कंपैरिजन होना चाहिए, बट उसका भी रूल है. कंपैरिजन का रूल क्या है? वो ये है कि कंपैरिजन सेल्फ टू सेल्फ होता है, यानी पहले मैं क्या कर रहा था और अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोग्रेस गेज करने के लिए. और जो कंपैरिजन दूसरों के साथ होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए होता है कि देखो ये इन्होंने किया है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये इज इट माई कप ऑफ टी, क्या मुझे ये करना चाहिए? नहीं तो मेरा अपना काम है, मैं वो उसमें ध्यान दूंगा और उसमें एक्सेल करूंगा. you're not, जैसे स्टूडेंट्स है ना, वो भी समझते हैं कि वो अपने क्लास फेलोज से compete कर रहे हैं,
आई एम सॉरी, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये माँ बाप ने और टीचर्स ने अगर दिया है तो ये गलत कॉन्सेप्ट है. यू आर नॉट कम्पीटिंग विद योर क्लासमेट्स, यू आर कम्पीटिंग विद द सिस्टम. जो एग्जामिनेशन सिस्टम है आप उससे कम्पीट कर रहे हैं, आप क्लासमेट से कम्पीट नहीं कर रहे. सो अगेन ऑफिस में भी हर हर पोस्ट का काम अलग है, हर बंदे का काम अलग है. सो देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन द कोलीग्स. अगर माहौल ऐसा बन चुका है तो उस माहौल को चेंज करने की, खत्म करने की जरूरत है. आई होप दैट वाज हेल्पफुल. I think it's a perfect answer. I really loved it. Very nicely and composed answer. Thank you. Thank you, Sana. Thank you very much for taking your time out. It was wonderful discussion Pleasure. with you on how negative thoughts steals our joy and happiness and how to overcome that. I personally learned from the session, and I'm sure that people who are part of the session and people who would be watching that session and in future, they would definitely learn from your thoughts and your discussion. Again, thank you very much. बहुत It was शुक्रिया. Thank you. wonderful Thank you so having much you. for having me. And I hope that we can do this sometime later as well on another topic. This was I a was pleasure. actually thinking to ask you to have a session later sometime on NLP. Actually, that is something really close to my बिल्कुल, heart also. Or we बिल्कुल. can definitely do that. We can Okay. surely connect. Thank you. Yeah. Thank you for today. Thank you very much, audience. Thank you very much for watching us today. After a break, we are here and we have lined up wonderful speakers for near future. So see you again. See you very soon. Thank you very much, Pakistan. Zindabad.